For example, ASTME define the roughness as the finer irregularities in the surface texture, including those irregularities that result from an uh, inherent action of the production process. So roughness spacing, मतलब basically we are focusing on the method of production, ठीक है ना? We are not concerned about the natural roughness जो है वो है, उससे हमें कोई लेन देन नहीं है. लेकिन जो हम लोग चीज बना रहे हैं उसमें रफनेस आपको अगर मेजर करना है तो उसकी डेफिनेशन एज पर दी ASTME ये इस तरह से है. Roughness spacing is the distance between the successive peaks and ridge that constitute the predominant pattern of roughness. Roughness height is the arithmetic average deviation expressed in the micrometer and measured per फॉर एग्जांपल से 10x फॉर एग्जांपल, तो उसमें आप देखोगे तो आपको वो मेजर पिक्स एंड वैल्यूज दिख जाएंगे, ठीक है ना? लेकिन अगर छोटा सा पोर्शन अगर लोगे आप फॉर एग्जांपल, तो उस केस में फिर वो जो बीच में है तो यू विल गेट मोर क्लैरिफिकेशन और द मैग्निफिकेशन, तो वहां पे पिक्स एंड वैल्यूज होंगे. तो जो ब्रॉड वे में आपको दिखता है उसको हम वेरिएंस बोलते हैं, और जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको दिखता है ऑब्वियसली बोथ वी कैन सी एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, बट उसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो अलग अलग होगा. एक में मान लो 10x है या 100x है, एक में 1500x है, तो नेचुरली 1500x वाला जो सरफेस होगा या जो इमेज होगी वो मोर क्लियर होगी वहां, और आपको ज्यादा क्लैरिटी से वो मिल जाएगा विद अ फोकस्ड फॉर एग्जांपल एरिया, वेरी स्मॉल एरिया. So surface roughness may be considered to be superimposed on the wavy surface. ठीक है, waviness is an error in the form, error in form due to incorrect geometry of tool producing the surface. On the other hand, roughness may be caused by problems such as tool chatter, transverse feed mark in supposedly geometrically perfect machine. The spacing of waviness is the width between the successive wavy peak and valleys. Waviness height is the distance from the peak and valley. तो ये वैसा ही है, बट ये इन जनरल आपको ध्यान में ये रखना है कि वेवीनेस में ब्रॉडर टर्म में होता है और इसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है. ले इट इज अ डायरेक्शन ऑफ predominant surface pattern or ordinarily determined by the production process used for manufacturing of the component. जैसे आपने होता है ना, जैसे मान लो आपने क्या बोलते हैं उसको मशीनिंग किया आपने, तो उसमें क्या ये ले कैसे बनेगा, वो सर्कुलर होता है. अगर वही आपने मशीनिंग की फॉर एग्जांपल ऑन लेथ मिलिंग मशीन, तो वो सर्कुलर होगा. अगर वही आपने उस पे किया फॉर एग्जांपल शेपिंग मशीन पे, तो वो लाइंस बनेंगे उसमें, तो दैट इज कॉल्ड एज अ ले, डायरेक्शन बोलते हैं. These are the irregularities that occur in isolation or infrequently because of specific causes such as the scratches, crack, and the blemishes. Surface texture, it is generally understood as a repetitive or the random deviation from the normal surface that form the pattern of surface. Surface texture encompasses roughness, waviness, lay, and flaw. So look at जैसा texture हम लोग बोलते हैं ना, and the same line. Error of form, these are widely spaced, repetitive irregularities occurring over a full length of workpiece work surface. Common type of error of form include the bow basically, the snacking, lobbing, etc. तो इस तरह से ये surface की जो different terminology वो use होती है. Analysis of surface stresses, तो अब इस सरफेस को अगर मान लो आपको मेजर करना है तो कैसे करेंगे? व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स व्हिच आर अवेलेबल? तो स्टैटिस्टिकली देयर आर सम मेथड्स व्हिच आर अवेलेबल ओवर हियर.
It is required to assign the numerical value to surface roughness in order to measure its degree. Some of the commonly used methods are 10-point height average root mean square value and the center line average height, that is called as a RN. So 10-point height average value, it is referred to as the peaks and valley height. In this case, we basically consider the average height encompassing the number of successive peaks and valleys of a asperities. मतलब 10 पॉइंट लिखा हुआ है तो मतलब लगभग आपको 10 पॉइंट लेने हैं, उसके एवरेज वैल्यू निकालनी है. As can be seen in the figure, a line AA parallel to the general lay of stress is drawn. The height of 5 consecutive peaks and valleys from the line A are noted down. तो यहाँ फिगर होगा. Look at this one. Measurement to calculate the 10-point average height. तो ये आपकी 5 पिक्स मान के चलो, 5 आपके वैली मान के चलो, उसका एवरेज आपको लेना है फॉर एग्जांपल. ठीक है ना. तो अल्टरनेट मान लो 1 के बाद हो गया आपका इस पर्टिकुलर 3, उसके बाद 5, 7 एंड सो ऑन. तो ये कंसेप्शन इसमें है जो हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं. हालांकि इसमें भी रिपीटेशन होता है क्योंकि ये वैल्यू वैसे होती नहीं है कि आपको ये भी आपको मल्टीपल टाइम्स करना होता है टू फाइंड आउट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू. ठीक है. द हाइट ऑफ द 5 consecutive peaks and values from the line A are noted down. तो ये इसका तरीका होता है. द एवरेज पीक टू वैल्यू हाइट RZ is given by following expression. तो ये इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है इसमें, एंड यू विल गेट फॉर एग्जांपल द वर्टिकल मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ से माइक्रोन. ओके. दूसरा मेथड होता है रूट मीन स्क्वायर. Until recently, RMS value was popular choice for quantifying surface roughness. However, this has been superseded by the center line average value. RMS value is defined as the square root of the mean of square of the ordinates of the surface measured from the mean line. The figure illustrates the graphical procedure for arriving at an RMS value. तो ये जैसे है ना, with reference to the figure, या वही फिगर आपको यूज करनी है वाली जो है ना, ये वाली. तो इसमें क्या करना है, आपको मेजर करना है. दैट इज फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर डिफरेंट हाइट, और उसका रूट मीन स्क्वायर लेना है. ठीक है ना. तो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी उसका होगा, मान लो एक लाइन, उसमें अगर आप रेफरेंस लाइन लोगे उसके ऊपर पॉजिटिव, उसके ऊपर नीचे नेगेटिव, इस तरह से कर सकते हो. या मैंने यू मे कंसीडर ए फॉर एग्जांपल लाइन समवेयर एंड दैट शुड बी अ डॉटम लाइन. तो उसके ऊपर होगा या नीचे होगा, अकॉर्डिंगली इट शुड बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव. तो उसका आपको वो रूट में स्क्वायर लेना है. लुक एट दिस इज द रिलेशनशिप. ये कॉमन जनरली हम लोग यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स में. आपने शायद किया भी होगा 10th में, 12th में, या कभी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर. ठीक है. सेंटर लाइन एवरेज वैल्यू, center line average value, the RA value is the prevalent standard for measuring surface roughness. तो क्या क्या हो गया आपकी, पहले हो गया आपका मेजरमेंट क्या था, ये 10-point हाइट हो गया. उसके बाद ये RA रूट मीन स्क्वायर हो गया. उसके बाद ये सेंटर लाइन एवरेज वैल्यू RA वैल्यू इज द prevalent standard for measuring the surface roughness. It is defined as the average height from the mean line of all ordinates of the surface regardless of sign. अब यहाँ साइन की जरूरत नहीं आपको, with reference to for example this particular figure. तो ये आर ए वैल्यू आपको ऐसे कैलकुलेट करनी है. अब इसमें सिंपली इन्होंने ऐड किया है इसको, एंड समेशन ऑफ ए डिवाइड बाय दिस पर्टिकुलर ए हो गया. So there are for example different say array value in micro. Nowadays we are using this array value. So this is a bar chart है. तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग मेथड हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें जो आरए वाली में आपको मिलनी चाहिए, मिलती है, वो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर वन. जैसे आपने फ्लेम कटिंग, जैसे आपने गैस कटिंग से करते हैं ना, वहां आपको इस रेंज में मिल जाएगी. ठीक है. आपने हैक्सॉ से कट किया, पावर सॉ ऑब्वियसली, वो इस रेंज में मिल सकती है. ड्रिलिंग में लुक एट दिस पर्टिकुलर इन द 10 to दिस पर्टिकुलर माइक्रोन. उसके बाद मिलिंग में यहाँ से स्टार्ट होगा अप टू दिस पर्टिकुलर वन. देन रिमिंग में लगभग 10 माइक्रोन ये जाएगा 0.2 माइक्रोन तक. लेजर मशीनिंग में और भी कम होगी, दिस इज 10 to फॉर एग्जांपल से 0.2 के आसपास फॉर एग्जांपल. देन ग्राइंडिंग में और कम होगा, ये लगभग 2.5 माइक्रोन से लेके 0.05 माइक्रोन.
लैपिंग, जैसे मैंने बार बार मैं बता रहा हूँ ना आपको, लैपिंग होता है प्रोसेस, उसमें यू विल फाइंड दैट दिस इज द वैल्यू ओवर हियर। ये कहाँ से किस रेंज में जाएगी, 0.1 माइक्रोन टू 0.01 माइक्रोन, ठीक है। सैंड कास्टिंग सबसे कम होती है, लुक एट दिस पर्टिकुलर, इसलिए सरफेस सैंड कास्टिंग का रफ होता है। फोर्जिंग में इट इज रफली 25 टू 10 माइक्रोन के बीच में रहेगी। So this all values depends on the manufacturing method that we are going to use for the purpose of fabricating the particular component over here. ठीक है, understood? ये values बड़ी important होती है। So this is the way to specify, for example, that particular value on the surface that is manufactured. तो इसमें इस तरह से आपको लिखना होता है स्पेसिफिकेशन ऑफ सरफेस टेक्सचर। हालांकि सरफेस टेक्सचर है, इसमें मैं एक तरीका दिखा दूंगा आपको। तो ये इस तरह से आपको एक तरह सिंबल बनाना होता है, इसके ऊपर कुछ वैल्यू लिखी होती है। तो ये अभी वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट फॉर एग्जांपल द सरफेस टेक्सचर। तो यहाँ दिख रहा है कि ले पैरेलल टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग द सरफेस टू बी द सिंबल इज अप्लाइड। अब ले, हाँ यहाँ ले की बात करें हम एक तरह से, ले परपेंडिकुलर, मतलब जो रेफरेंस लाइन हमारा है ले परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। यहाँ पैरेलल है, इस तरह से मतलब अपनी मशीनिंग किया है। यहाँ जो ले आपका जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर आपने किया। ले इज एंगुलर, तो यहाँ जैसे आपने क्रॉस मशीनिंग तरह से कर ली, जैसे मिलिंग मशीन पे कई बार हम लोग कर लेते हैं। यहाँ ले मल्टी डायरेक्शनल है, ये भी मिलिंग मशीन पे हो सकता है। ले सर्कुलर, ये लेथ मशीन पे जनरली होता है। ले approximate radial to the center of the surface to which the symbol is applied। तो ये ले आपका रेडियल होगा उसमें, मतलब जैसे ये मान लो आपका है, ये एक्सियल हो गया, ये इस डायरेक्शन में होगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो दिस इज द फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ले ऑफ ए सरफेस टेक्सचर। ये इसका सिंबल होता है। जैसे अपने मशीन ड्राइंग में ड्राइंग बनाएंगे, आई डोंट नो वेदर यू यूज दिस पर्टिकुलर थिंग, तो यहाँ हमको लिखना होता है, इस तरह से इसको लिखना होता है कि ले किस तरह का, जैसे ये इंडिकेट किया है कि ये ले इसका फॉर एग्जांपल से जो भी है परपेंडिकुलर है। मैक्सिमम रफनेस इसमें जैसे विड्थ इसमें दी है फॉर एग्जांपल 0.042, रफनेस विड्थ कट ऑफ ये 0.08 है। मैक्सिमम वेवीनेस इन दिस पर्टिकुलर रेंज, देन द मैक्सिमम हाइट ऑफ रफनेस ये है, मिनिमम हाइट ये है। तो ये आपको सारा उसमें उस रेंज में मेंशन करना होता है, मतलब यहाँ नंबर आपको लिखने होते हैं कि इस तरह से अगर सारे मेंशन करने होते हैं। इट विल लुक लाइक इन दिस पर्टिकुलर वे, ये इस तरह से दिखता है वो, ठीक है ना। हालांकि इसमें भी ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली आपको वही लिखना होता है, इसमें भी आपको जैसे हम शार्ट बेस सिस्टम और द सरफेस वो होल बेस सिस्टम में जैसे हम कैपिटल एच और स्मॉल फॉर एग्जांपल दिस लेटर यूज करते हैं, वैसे ही इसको अभी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो मेथड ऑफ मेजरिंग फॉर एग्जांपल द सरफेस फिनिश, तो क्या क्या मेथड्स आपके पास है। ये तो हो गया कि हाउ टू क्वांटिफाई एंड हाउ व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ दिस सरफेस रफनेस। अब आपको मेजर करना है। मेजर करने का मैं एक तरीका, सिंपल तरीका आपको पता है कि यू कैन जस्ट हैव द योर फिंगर ऑन द सरफेस, बट वो आपको देगा द क्वालिटेटिव मेजर। लेकिन आपको तो क्या चाहिए, यू नीड आइदर प्रोफाइल, यू नीड फॉर एग्जांपल आइदर सम वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ टू क्वांटिफाई इट। तो उसके लिए देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू मेजर द सरफेस रफनेस। अब क्या क्या मेथड्स आपके पास उस केस में है, लुक एट, देयर आर बेसिकली टू अप्रोचेस फॉर मेजरिंग सरफेस रफनेस, कंपैरिजन एंड डायरेक्ट मेजरमेंट। तो या तो कंपैरिजन करोगे आप उसमें, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि वही मोबाइल वाला सरफेस ले लिया, लेकिन वहां या तो आपके पास वो क्वालिटेटिव वैल्यू मिलेगी आपको, या तो फिर वो कंपैरिजन में फिर आपको अपसेट स्टैंडर्ड होगा आपका और आप उसको मेजर करोगे और accordingly you can simply accept and reject it without measuring the actual value। तो कई बार आपको मेजरमेंट भी चाहिए होता है, तो depending upon the requirement you can use the two types of method over here। The former is the simple up to but is more subjective in nature। The comparative methods advocate the assessment of surface texture by observation or feel of the surface, जो मैंने example दिया आपको। Microscopic examination is an obvious improvisation of this method। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप उसको देखोगे, फिर उसको क्वांटिफाई करोगे, that is the improvisation of this particular method। However, it still has two major drawbacks। First, the view of the surface may be deceptive to the surface that appear identical may be quite different। Second, the height of the aspirates cannot be रेडिली डिटरमाइन। तो ये प्रॉब्लम इसमें है, ये ऐसा नहीं क्योंकि उसमें सरफेस तो बहुत बड़ा होता है, मान लो किसी ऑब्जेक्ट का माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर देखेंगे तो उसमें
You can't for example get the actual idea, but वो एक रफ आइडिया आपको मिल जाता है, एक तरह से एवरेज वैल्यू मिल जाती है उसमें, ठीक है. So touch is perhaps a better method than visual observation. तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया ही है. However, this method is also subjective in nature and depend to a large extent on the judgment of a person and therefore not reliable. ठीक है ना. अब हो सकता है किसी एक बंदे को जो ऑब्जर्व फील है वो अलग तरीके की हो, दूसरे के अलग तरीके की हो, तो वो he will give the reading or for observation according to his conception. These limitations have driven technology experts to devise ways and means of directly measuring surface texture by employing direct method. The direct method enables a numerical value to be assigned to surface finish. The following section explain the popular method to determine methods for determination of surface texture. So direct measurement enable a numerical value to be assigned to the surface finish. Following sections explain the popular method for determination of surface texture. तो कौन कौन से मेथड आपके पास है? एक होता है स्टाइलस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ठीक है ना. स्टाइलस में हम लोग क्या करेंगे, आपके पास एक प्रोब होता है और जो प्रोब का जो नीचे जैसे डायल इंडिकेटर होता है ना, जैसे मैंने वही यूज कर सकते हो डायल इंडिकेटर इटसेल्फ. तो डायल इंडिकेटर जैसे हमने मान लो एक स्टैंड पे लगा लिया और वो उसको अपने मूव कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू सम फॉर एग्जांपल ऑन द सरफेस, तो डायल इंडिकेटर की मूवमेंट आपको धीरे धीरे करनी है. तो हर अगर या तो आप जो सरफेस होगा उसको डिवाइड कर लो बाय ड्राइंग अ लाइन, या जैसे भी आपको ड्रॉ करनी है वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, और वहां नोड्स बना लो. तो हर नोड पे उसकी वैल्यू आप मेजर करो बाय यूजिंग द डायल इंडिकेटर. तो वो एक स्टाइलस टाइप और एक सिस्टम हो जाता है. या तो आपका जो मेजरमेंट होगा बाय यूजिंग दैट लाइंस, मतलब उसमें फिर क्या होगा कि आप उसको छोटे छोटे नोड्स बनाओगे फॉर एग्जांपल, मतलब बाय ड्राइंग द वर्टिकल, या तो कंटिन्यूअसली सरफेस पे स्टाइलस को मूव करो. तो वो आपको हर पॉइंट पे आपको रीडिंग दे देगा, कंटिन्यूस रीडिंग दे देगा उसमें कितना कितना, तो वो आपको मेजर करना होता है. तो इसके लिए आपके पास या तो मैनुअल सिस्टम भी होता है या कंप्यूटर सिस्टम भी होता है. आजकल वो आपको वेगनेस या आपके सर मतलब वो रफनेस वैल्यू आपको बाय यूजिंग कंप्यूटर दे देता है, कैलकुलेट करके दे देता है. The stylus system measurement is the most popular method to measure the surface finish. The operation of stylus instrument is quite similar to the phonograph pickup. The stylus draws across the surface of the workpiece, generate electrical signal that is proportional to the dimensions of asperatus. तो या मतलब मैंने बताया ना अलग अलग आप सिस्टम यूज कर सकते हैं, या तो टोटली मैकेनिकल होगा या तो you can convert that signal into electrical signal, फिर वो पास ऑन होंगे किसी टर्म में और इलेक्ट्रिकली आप उसको मेजर कर सकते हो. The output is generated a hard copy unit or stored on some magnetizable media, जैसे आपकी floppy disk होती है. This enable the extraction of the measurable parameter from the data, which can be quantify the degree of surface roughness. तो अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो सिग्नल आपको जैसे भी लेने हैं उसमें. Following are the features of the stylus system. Skid or the shoe drawn over a workpiece surface such that it follows the general contour of the surface as accurately as possible. The skid also provides the datum for the stylus. A stylus that moves on a surface along with the skid such that its motion is vertical related to the skid. The property enables the stylus to capture the contour of the surface roughness independent of the surface waviness. तो वो धीरे धीरे मूव करेगा उसके ऊपर. An amplifying device for magnifying the stylus movement. Number 3, recording device to produce the trace or the record of the surface profile. ठीक है, जैसे वो आपको मिलता है ना, जैसे हम लोग या तो सेस्मिक एक्टिविटी को मेजर करने के लिए वो लाइन होती है, आपने देखा होगा वो ऐसे जिगजैग लाइन बनती है. या तो जो आपका वो मेडिकल साइंस में भी होता है ना कि आपको हार्ट बीट हो गया या जो भी आपको मेजर करना है, तो वो आपको मतलब मेरे ख्याल से कौन सा होता है वो हम लोग बनाते हैं हार्ट का बनाते, क्या होता है कौन सा ग्राफ होता है वो बोल रहा हूँ मैं. अरे कौन सा होता है कार्डियोग्राम निकालते हैं ना.
हेलो। अरे मेरी यस बात, सर। कार्डियग्राम देखा है कभी? वो कैसे, या सेस्मिक जो होता है इसमें वो एक पिन लगी होती है, वो मूव करती है ऑन दी, फॉर एग्जांपल पेपर, पीस ऑफ पेपर। तो वैसे, यस सर। हाँ, वैसे वो स्ट्रेस बनेगा और उसकी जो पिक्स एंड वैल्यूज होगी वो मेजर आप कर सकते हो। या तो कंप्यूटराइज्ड में यूज कर मेजर कर लो, या मैकेनिकली यूज कर मेजर कर लो, ठीक है ना। और मीन्स ऑफ एनालाइजिंग द प्रोफाइल्स जस्ट ऑप्टेंड, मतलब या तो प्रोफाइल के टर्म में भी कर सकते हो, या एग्जैक्टली पिक्स एंड वैल्यूज के टर्म में जो मेजरमेंट करके भी हो सकता है। The stylus and the datum. There are two types of stylus instrument: true datum and the surface datum, which are also known as the skidless and the skid type respectively. In the skidless instrument, the stylus is drawn across the surface by a mechanical movement that results in a precise path. The path is the datum from which the assessment is made. और स्किड टाइप में एक मतलब आपके पास स्टाइलस होगा और एक उसका सपोर्टिंग ये होगा। तो स्किड टाइप में क्या, एक तो स्किडलेस हो गया जिसमें एक ही है फॉर एग्जांपल। दूसरे इसमें क्या होगा, a skid type instrument, thus the stylus pickup unit is supported by a member that rests on the surface and slides along with it. This additional member is the skid or a shoe. The figure below shows the relationship between the stylus and the skid. ये इस तरह से, तो ये आपका पहले एक केस में क्या करेंगे, हम सिंपली यही यूज करेंगे और इसको ही मूव करेंगे ऑन ऑल दिस सरफेस, ठीक है ना। और दूसरे केस में क्या करेंगे, हम लोग स्किड यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये इट विल एक्ट एज ए सपोर्टिंग मेंबर बेसिकली। The skids are rounded at the bottom and fixed to the pickup unit. They may be located in front of or behind the stylus. Some instruments uses a shoe as supporting slide instead of skid. Shoes are मतलब यही होता है बेसिकली, लेकिन यहाँ फ्लैट सरफेस होता है बेसिकली। Shoes are flat pad with a swelling mounting on the head. The datum created by skid of the shoe is the locus of its center of curvature as it slides along the surface. The stylus is typically a diamond having a cone angle of 90 degree and a spherical tip radius of say 1 to 5 micron or even less. The stylus tip radius should be small enough to follow the details of the surface irregularities. So look at this particular, but should also have the strength to resist the wear and this shock. तो इसीलिए वो जो स्टाइलस आपका होता है वो हार्ड होता है, मटेरियल का होता है बेसिकली। Stylus load should also be controlled so that it does not leave additional scratch mark on the component being inspected. अब ऐसा नहीं है कि आप स्टाइलस पे आपने फोर्स लगा दिया तो वो स्टाइलस ही क्रिएट करेगा इंडेंट ऑन द सरफेस। तो ये भी आपको इंश्योर करना है, you should apply the appropriate force on the surface. In order to capture the complete picture of surface irregularities, it is necessary to investigate waviness, second is texture, in addition to the roughness, the primary structure. तो प्राइमरी मतलब बिल्कुल छोटा जो प्राइमरी हो गया, और जो बड़ा होता है उसको सेकेंडरी बोलते हैं। ये हो गया, ये हो गया। Waviness may occur with the same as primary texture, while the pointed the stylus is used to measure the roughness, but blunt stylus is required to plot the waviness. तो जो मान लो दो आपने यूज करने हैं तो छोटा स्टाइलस आपको देगा रफनेस, बड़ा स्टाइलस आपको पैटर्न देगा, मतलब एक तरह से वेवीनेस। तो स्टाइलस प्रोब इंस्ट्रूमेंट, अब इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं। मोस्ट स्टाइलस बेस्ड इंस्ट्रूमेंट, a stylus drawn across the surface of the component being inspected generate electrical signals that are proportional to the changes in the surface asperities. An electrical means of amplifying signals rather than a purely mechanical one, minimizes the pressure of the stylus on the component. Changes in the height of the asperities may directly read by a meter or a chart. Most instruments provide the graph of the stylus path along the surface. तो ये look at this particular मैकेनिकल में हो सकता है कि देयर इज अ फ्रिक्शन एंड ऑल दैट थिंग, इसीलिए हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं एंड दैट विल गिव द रादर बेटर रिजल्ट। तो इसमें कौन कौन से हम कॉमन में आता है, एक मेरे ख्याल से इंग्लैंड की कंपनी है टॉमलिंसन, ठीक है ना, नहीं सॉरी ये कुछ और है, एक है मैं कंपनी बता दूंगा आपको, वो बनाती है उसको।
So this is a mechanical optical instrument designed by Dr. Tomlinson. ये कोई डॉक्टर थे, Tomlinson scientist थे, National Physical Laboratory of UK. Figure below is illustrate the construction details of this Tomlinson surface meter. The sensing element is a stylus which moves up and down depending upon the result of the workpiece surface. The stylus is considered to move only in the vertical direction because of लिप स्प्रिंग एंड कॉइल स्प्रिंग. तो यहाँ जो मोमेंट आपको चाहिए वो वर्टिकली चाहिए बेसिकली. The tension in the coil spring P causes a similar tension in the lip spring, though these two combined forces hold the cross roller in a position between the stylus and the pair of a parallel fixed roller. तो इसका फिगर कहीं होगा. Look at this particular. ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, ये स्प्रिंग है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना. और ये जैसे इसका सिंपल तरीका ये है कि ये जैसे आपका ये स्कीड है, जैसे मैंने बताया ना, ये स्कीड आपको चाहिए सपोर्टिंग मेंबर एक तरह से. ये आपका स्टाइलस है जिस पॉइंटेड है, ये जैसे उसमें वो लगा है 90 डिग्री होता है बेसिकली ये, ठीक है. 90 तो नहीं हो सकता लेकिन दिया गया है एनीवे, मतलब छोटा होता है, माइक्रोन में होता है. एंगल इसका मे बी 45 और मे बी इन द रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर वन. ये सरफेस है आपका जिसका कि आपको रफनेस मेजर करना है. ये मूव हो रहा है जैसे इस डायरेक्शन में जाएगा फॉर एग्जांपल, ठीक है ना. और ये इसकी मोमेंट ऊपर मतलब अप एंड डाउन हो जाएगी इस पर्टिकुलर केस में, वर्टिकल होगी सिंपली. एंड ये इसके कांटेक्ट में है, जैसे ये आपका इंडिकेटर है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना. तो वो यहाँ आपको ये जो स्ट्रेस है ना वो देगा कि किस तरह का वो पाथ आ रहा है लाइक दिस पर्टिकुलर. So look at, this is a fixed roller over here. This is for example, the cross roller over here. This is spring, and this is, for example, arm, etc. So this leaf spring basically, which is given over here, and so on. So simple तरीके में ये है कि ये इसकी मोमेंट होगी अप एंड डाउन. और यहाँ ये जो आपका जो भी ये फॉर एग्जांपल स्प्रिंग स्टील आर्म, मतलब जो आर्म है वो ऊपर नीचे मूव करेगा एंड इट विल जनरेट फॉर एग्जांपल यहाँ आपका पाथ जनरेट कर देगा लाइक दिस पर्टिकुलर. The shear is attached to the body of the instrument to provide the required datum for the measurement of surface roughness. The light spring steel arm is attached to the cross roller and carries diamond tape. जैसे ये ना बताया था मैंने, ये डायमंड, यहाँ डायमंड टिप होगा कहीं, ये रहा डायमंड टिप लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है. तो the translatory motion of stylus causes the rotation of the cross roller about a point A. तो ये पॉइंट A आपका, ठीक है ना. यहाँ होगा, जैसे मूव करेगा ये थोड़ा सा इस तरह से मूव करेगा रोलर, and which in turn converted into the magnified motion of the diamond point. The diamond tip presses the profile of a workpiece on the smoked glass sheet. The glass sheet is transferred to an optical projector and magnified further. तो ये फिर हम ट्रांसफर कर देंगे प्रोफाइल प्रोजेक्टर पे, फिर हम उसमें मेजर कर सकते हैं, मैन्युअली भी कर सकते हैं. Nowadays the computers are being used for this particular purpose. Typical the magnitude of order of say 50 to 100 ये माइक्रोन होगा इसमें, is especially achieved in this instrument. In order to get the stress of the surface irregularities, relative motion need to be generated between the stylus and the workpiece surface. तो वो मूव होना चाहिए, ठीक है ना. मतलब या तो स्टाइलस मूव कर लो या तो सरफेस मूव कर लो, तो वो किसी टेबल पे माउंटेड होगा. या तो आपका जो स्टाइलस है वो किसी टेबल पे होगा या आपको वर्कपीस किसी टेबल पे होगा, और टेबल मूव करेगा हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल मतलब प्लेन में. Usually the requirement is made by moving the body of the instrument slowly with a screw driven by the electric motor at very slow speed. Either way कर सकते हैं उसमें. Anti friction guideways जैसे बताया ना मैंने, या तो टेबल को मूव कर लो या तो जो इंस्ट्रूमेंट माउंट किया उसको मूव कर लो. Anti friction guideways are used to provide the friction free movement in a straight path. तो ये भी कर सकते हैं आप लोग. हाँ ये है वो टेलर हॉब्सन, ये एक इंग्लैंड की कंपनी है, ठीक है, वो बनाती है इसको. The Taylor Hobson, the Daly surf work on the same principle that of say Tomlinson surface meter. However, unlike the surface meter, which is purely a mechanical instrument, the Daly surf is an electronic instrument. तो वो mechanical मान लो कि वो आपको simply वो बना के दे रहा है. This factor makes a Daly surf more versatile instrument, can be used in many conditions, be it a meteorological laboratory or the factory shop floor. The figure illustrates the cross section of the measuring head. The stylus is attached to an armature which provides about the center of the piece of an E-shaped stamping.
The outer leg of E-shaped stamping are wound with electrical coil. तो ये इस तरह से होता है, ठीक है ना। ई शेप मतलब वो एक आपने देखा होगा कि जो ट्रांसफार्मर या वो बनते हैं उसमें इस तरह से हम लोग प्लेट्स यूज कर लेते हैं। तो यहाँ ई शेप से ये स्टैंपिंग्स है एंड उसमें वो अपने कॉइल लगा दी उसमें, ठीक है ना। ये आर्मेचर है, ये आपका वर्कपीस है और ये स्कीड है और ये मान लो फॉर एग्जांपल आपका वो स्टाइलस है जिसको हम यूज कर रहे हैं और ये आपका स्कीड है सपोर्टिंग। Predetermined value of alternating current excitation current is supplied to the coil. The coils from part of bridge circuit. A skid or a shoe provide a datum to plot surface roughness. Measuring head can be transversed in a linear path by an electric motor. ये इसका सर्किट होता है, ब्रिज स्टोन आपने पढ़ा होगा उसमें, ठीक है ना। इस तरह से होता है। तो ये अरेंजमेंट है इसकी electrical electronics. The motor which may be of variable speed type or provided with a gearbox provide the required speed for the movement of the measuring head. As the stylus moves up and down due to surface irregularity, the armature is also displaced. This causes the variation in the air gap leading to an imbalance in the bridge circuit. Resulting bridge circuit output consists of only modulation. This is fed to an amplifier and then recorded and a pen recorder is used to make the permanent record. The instrument has capability to calculate and display the roughness value according to the standard formula. ठीक है, ये भी आपको दे देगा। एक होता है, अब ये हो गया। इसके बाद है आपके पास प्रोफाइलोमीटर। प्रोफाइलोमीटर is a compact device that can be used for direct measurement of surface texture. A finely pointed stylus will be in contact with the workpiece surface. Electrical pickup attached to stylus amplifies the signal and feed to either an indicating unit or recording unit. The stylus may be moved either by hand or by motorized mechanism. Profilometer is capable of measuring roughness together with waviness and in other surface flaws. And any other surface flaw. It provides a quick fix means of conducting an initial investigation before attempting a major investigation of surface quality. तो ये स्टार्टिंग में अगर आपको करना है, मतलब जस्ट आपको गेस लेना है, तो यू कैन मेक यूज ऑफ दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट। उसके बाद होता है न्यूमेटिक मेथड। ये तो हमने देखा ही है, जिसमें वही आपके पास प्रेशर हेड होगा, वो प्रेशर वेरिएशन होगा, वो दैट विल गिव यू फॉर एग्जांपल से द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द प्रेशर, और वो उसको क्वांटिफाई कर सकते हो ऑन अ स्केल। Air leakage method is often used for assessing the surface texture. Pneumatic comparator is used for conducting mass inspection of the part. Compressed air is discharged from self-aligning nozzle head flows to surface being inspected. Depending upon the height variation in the surface irregularities, the gap between the nozzle tip and the workpiece surface varies. जो मैंने बताया था ना, जब nozzle surface और workpiece उसमें क्या vary करेगी और उससे बैक प्रेशर क्रिएट होगा और वो हम मेजर कर लेंगे और उसके बाद उसको ट्रांसफर कर देंगे इन टर्म्स ऑफ दिस लिनियर मेजरमेंट या जो भी आपकी स्केल होगी। This result in the variation of flow rate of air, which in turn varies the rotation speed of the rotometer. Rotation of the rotometer is an indication of surface irregularities. Alternatively, the float can be used to measure the surface deviation. The comparator is initially set using the reference gauges. उसके बाद आपके पास है this light interference microscope. So nowadays we are using, for example, this interferometry to measure the surface roughness. वो हम लोग इसके बाद वाला जो चैप्टर होगा उसमें देखेंगे। The light interference technique offer a non-contact. अब ये जो मेथड है, there are two methods basically. जो पहला हमने मेथड देखा है, that is the contact up method, और ये जो मेथड है that is called as a non-contact. तो इसमें कोई contact नहीं होगा। The light interference technique offer a non-contacting method of assessing surface texture. Advantage of these methods are that it allows an area of workpiece surface to be examined, a wide range of magnifications to be used, and the opportunity for making the permanent record of the fringe pattern using camera. तो यहाँ पैटर्न्स बनते हैं, मैं दिखा दूंगा आपको। Good magnification capability allows the good resolution up to a scratch spacing of say 0.5 micron, मतलब दो जो spacing और scratch का 0.5 micron तक आपको मिल सकता है। Monolithic, monochromatic lights passing through an optical flat. एक ऑप्टिकल फ्लैट है, वो एक ग्लास बेसिकली होता है, बेसिकली मतलब फ्लैट होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है बेसिकली, एंड फॉलिंग ऑन द वर्कपीस सरफेस जनरेट द फ्रिंज पैटर्न। तो वो हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें देखेंगे उसको।
However, the assessment of surface irregularities cannot be directly related to the RA value. तो यहाँ आपको सिंपली पता लग जाएगा कितना वो रफ है कितना है, मतलब क्वांटिटी वैल्यू तो शायद नहीं मिलते इसमें. Master specimens are used to generate the reference fringe pattern, which is compared with the fringe pattern of the workpiece or to arrive at the conclusion regarding surface quality. This method provides the viable alternative for inspecting soft or the thin surfaces, which normally cannot be examined by using the stylus instrument. अब ये इसमें सबसे important aspect है कि मान लो आपका surface thin है, जैसे aluminium foil है, just imagine. एल्यूमिनियम फॉइल की जो थिकनेस होती है माइक्रोन में होती है, और स्टाइलस अगर उसके ऊपर आप चलाओगे तो फट जाएगा या डिफॉर्म हो जाएगा. तो उस केसेस में अगर आपको उसका मान लो सरफेस रफनेस मेजर करना है तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो. ठीक है. एक और इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉल्ड एज ए मैक्रेन इंस्ट्रूमेंट. द मैक्रेन इंस्ट्रूमेंट असेस द सरफेस इरेगुलरिटीज थ्रू फ्रिक्शनल प्रॉपर्टीज एंड द एवरेज स्लोप ऑफ द इरेगुलरिटीज. दिस अब ये दूसरा मेथड है. ठीक है ना. हालांकि ये भी कॉन्टैक्टिंग टाइप है. दिस गेज इज सुटेड फॉर द सरफेस मैन्युफैक्चर्ड बाय प्रोसेस सच एज ग्राइंडिंग, हॉर्निंग, लैपिंग. ये इंपॉर्टेंट है. इसमें जो सरफेस ग्राइंडिंग, हॉर्निंग, लैपिंग से बनते हैं उसमें जो सरफेस रफनेस होता है उसकी रेंज बहुत छोटी होती है, कम होती है. तो वहां फिर आपको जो नॉर्मल मेथड है स्टाइलस वाला वो आप यूज नहीं कर सकते. Which have low RA value in the range of say 3 to 5 micron. Figure illustrate the working principle of this instrument. तो जैसे सिंपली एक छोटा सा ब्लेड होता है, ब्लेड टाइप सरफेस, और इसमें ये सरफेस है और दिस एंगल इज कॉल्ड एज अटैक एंगल. इसको मेजर किया जाता है. ठीक है ना. और ये क्रिटिकल एंगल है फॉर एग्जांपल. तो और यहाँ आप कोई थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हो, सम अमाउंट ऑफ फोर्स, तो जहां ये बकलिंग होगी, जहां बकल हो गया वो क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा. जहां तक बकलिंग नहीं हो रही है मान लो, that angle is called as an attack angle. So this is the principle of the Macrane instrument basically. A thin metallic blade is pushed against the workpiece surface at a certain angle. The blade may slide or buckle depending upon the surface roughness or attack angle. तो आप क्या कर रहे हो, उसको पुश कर रहे हो. The at lower angle of attack, the blade tip will slide over a surface of a workpiece. As the angle of attack is increased, the critical value is reached at which the blade start buckling. तो जैसे ये अब है ना, जैसे हम लोग करते हैं ना, अगर ये एंगल छोटा रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ फोर्स लगाएंगे तो there is possibility that it will slide over the surface. जैसे ये एंगल हम बड़ा कर देंगे और यहाँ फोर्स लगाएंगे फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, इट हैज अ ये कहीं ना कहीं मैकेनिकल लॉक हो जाएगा और इट हैज अ टेंडेंसी फॉर एग्जांपल बकलिंग हो गया. सो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल एंगल बेसिकली. तो यही प्रिंसिपल यहाँ हम लोग यूज करते हैं. दिस क्रिटिकल एंगल इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ रफनेस ऑफ द सरफेस. द इंस्ट्रूमेंट इज प्रोवाइडेड विद एडिशनल फीचर फॉर इजियर हैंडलिंग. A graduated dial will directly give the reading of the roughness value. ये भी आप कर सकते हो इसमें. देन उसके बाद ये आता है आपका, तो ये आपका दिस इज ऑल अबाउट फॉर एग्जांपल दिस रफनेस मेथड्स एंड रफनेस कांसेप्ट ऑफ रफनेस एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड ऑल दैट थिंग. ठीक है. तो ये हमने किया आज. बाकी फिर अभी चलते, इसके बाद आता है वो हम कल बाद वाली क्लास में करेंगे. ये है फॉर एग्जांपल, ये होता है कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन. अब ये मैं थोड़ा ब्रीफ आपको कर देता हूँ. अभी वैसे मैं अभी डिस्कस नहीं करेंगे इसको. जो भी आजकल हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो भी हमको असेंबली करनी है, वी रिक्वायर्ड प्रिसीजन बेसिकली. ठीक है. उसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग, जैसे हम लोग नाउअडेज वी आर यूजिंग से एनसी सीएनसी मशीन और मास प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं. एट द सेम टाइम वो क्या होता है कि उस पर्टिकुलर केस में कि रेट ऑफ प्रोडक्शन फास्ट होता है और आपको इतना आपके पास टाइम होता भी नहीं है. और वो फॉर एग्जांपल उसमें आपको प्रिसीजन लोकेशन चाहिए ताकि आप सारी चीजें मेजर कर सको अकॉर्डिंग टू दिस ज्योमेट्रिक फीचर्स. तो उसके लिए फिर आपको एक सिस्टम चाहिए कि उसकी लोकेशन क्या है, उसका हाइट कितना है, विड्थ कितना है, किस पॉइंट पे, दैट इज ऑन दी considering the x y z for example this direction. तो x y z एक्सिस कह लीजिए उसको. तो with reference to आपको एक मान पॉइंट को लोकेट करना है तो you require for example this dimension x y z. तो उस लोकेशन के लिए जो मेथड हम लोग यूज करते हैं that is called as a coordinate measuring machine. आपने coordinate geometry होपफुली पढ़ा होगा 10th 12th में. ठीक है ना. तो सेम कंसेप्शन हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, बट यहाँ उसका यूज हो रहा है फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है. Anyway, so we are going to stop now and I'm going to mark your attendance.
हाँ ये लोग लगभग 52 लोग हैं, तो 52 लोगों की अटेंडेंस लगेगी। So that PPT is posted. If you have any doubt regarding the PPT, you can post your query on the classroom. और दूसरा ये है कि आपको पढ़ना है उसमें से, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम द पीपीटी यू शुड रेफर टू द बुक आल्सो, दैट इज माय सजेशन। कोई भी वो बुक यूज कर लो आप, जो भी अच्छी लगे आपको। नाउ अटेंडेंस पूर्वी, प्रेजेंट सर। उसके बाद प्रियांशु, प्रेजेंट सर। आर्यन, आर्यन माहेश्वरी नहीं है, हर्ष शुक्ला, प्रेजेंट सर। सोनाक्षी, सोनाक्षी नॉट देयर, ध्रुव सिंधु, ध्रुव सिंधु, रवि, प्रेजेंट सर। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन गौर, करण यादव, प्रेजेंट सर। उसके बाद है अनिकेत, प्रेजेंट सर। हर्ष पोरवाल, प्रेजेंट सर। अग्रिम, प्रेजेंट सर। प्रणव, प्रेजेंट सर। सैयद, सैयद नहीं है, दीपक, प्रेजेंट सर। हिमांशु सैनी, प्रेजेंट सर। ऋत्विक, प्रेजेंट सर। साहिल, यस सर। अभिनव, प्रेजेंट सर। समर्थ, समर्थ नहीं है, याशिका, प्रेजेंट सर। खुशी, खुशी, प्रेजेंट सर। उदित पाठक, प्रेजेंट सर। आर्यन सोलंकी, प्रेजेंट सर। अनीश वर्मा, प्रेजेंट सर।